So now we have to solve the problems. Okay, some problems. This is an op-amp problems. So we at first calculate the first op-amp. Here given that R equals to 10 kilo ohm, is this given V1 is minus 10 millivolt and the given V2 is minus 30 millivolt. So we have to now calculate the V output. According to this picture, we have considered that the first circuit as a buffer circuit. So we can write easily. Again, we have to consider that this voltage is V0 naught. Okay. So according to the buffer circuit, we can write that V0 naught equals to minus V1. Okay. Because of here is unitary gain, unit gain this is. So you have to now calculate the second circuit op amp, and this output is V output. So V output is, we can write that minus of V0 naught plus V2 whole into R by R. Okay. So now V0 naught equals to minus over V1 plus V2, that is minus V1 is given 10 and V2 is given minus 30. Okay, that is 20 millivolt. Okay, the option is right, option C. Now we have solved these problems. A particle of mass m is subjected to the potential Vx equals to k into x square plus y square, where x, y are the constant coordinates of the particle and k is constant. So हम लोग को निकलना है कि ये जो चार ऑप्शन है इसके अंदर कौन सा सही है. ओके, तो वी एट फर्स्ट राइट दैट भी जो सप्लाई किया था डाटा एक्स वाई टी इक्वल्स टू के ओवर होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, सो वी कैन राइट द Lagrangian here. L equals to T minus B. Okay, the T is the kinetic energy. We can write that half x dot square plus y डॉट स्क्वायर इंटू एम माइनस ये जो पोटेंशियल दिया था वो है के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, तो हमने ये जो Lagrangian था वो हमने लिख लिया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशंस. ओके, नाउ द Lagrangian इक्वेशन ऑफ मोशन, वी कैन राइट दैट डी डी टी ऑफ डेल एल डेल एक्स डॉट माइनस del L del x equals to 0. Okay, so we can write that here m x double dot plus 2kx equals to 0, and similarly we can write that m y double dot plus 2ky equals to 0. According to this equation we can write that x double dot plus omega square x equals to 0, where omega equals to root under omega equals to root under 2k by m. And similarly according to this equation we can write that y double dot plus omega square y equals to 0. So now we have these two equations, so we can numbering that number 1 and number 2. Now we multiply y with equation 1 and multiply x with equation 2. So we can write these equations x double dot plus y plus omega square xy equals to 0, and this equation we multiply x, show x y double dot. हाँ, ये जो इक्वेशन था वो हमने x मल्टीप्लाई कर लिया एक्स वाई डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई. नाउ वी numbering this equation number 3 and number 4. Now we subtract these two equations, so we can write that x double dot y
minus x y double dot equals to 0, and integrate, then we can write x dot y minus x y dot equals to constant. So हमारा राइट ऑप्शन है ये इक्वेशन एक्चुअली y डॉट एक्स माइनस एक्स डॉट सॉरी हाँ, ये हमने इसको चेंज करना है, हमारा ये जो नेगेटिव था उसको करना है, तो ये हम लिख पाएगा एक्स वाई डॉट माइनस एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमारा सही राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके हाँ, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को। यहाँ पर दिया है पॉजिट्रोनियम इज अ शॉर्ट लाइफ बाउंडेड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन। The energy difference between the first excited state and the ground state of positronium is expected to be around। हाँ, ये जो चार ऑप्शन दिया है हमको निकालना पड़ेगा इसके अंदर से ही ऑप्शन कौन है। ओके, तो नाउ वी नो दैट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, वी कंसीडर द इलेक्ट्रॉन एट हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वी राइट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का निकलना पड़ेगा। आप यहाँ पर दिया है जो ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दोनों ही स्टेट दिया है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या लिखना है, तो ये लिखना है इक्वल्स टू हम -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, यूजिंग दिस इक्वेशन हेयर En इक्वल्स टू -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा। सो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so we can write that 10.2 electron volt. Now for positronium, so the ground state energy for positronium, or positronium not positron, the ground state energy यहाँ पर है -6.8 electron volt, and the first excited state equals to -6.8 by 2 square equals to -1.7 electron volt. So the energy difference now, हाँ यहाँ पर लिखा, तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर है -1.7 प्लस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 5.1 electron volt. So now we can see that the energy difference for positron between the ground state and the first excited state is 5.1 electron volt, and the energy difference between the ground state and the first excited state of the electron is 10.2 electron volt. Okay, so the सही ऑप्शन है यहाँ पर that the half that of the hydrogen atom. Okay, the correct option is option C. तो आप हम सॉल्यूशन करने वाला है इस प्रॉब्लम को। ये है ए पार्टिकल इज इन द nth एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ द इनफाइनाइट वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल between x equals to 0 and x equals to L. Let P be the probability of finding the particle between x and 0 and x equals to 1 by 3. Here given condition is n tends to infinite. So you have to calculate the value of the probability of finding the particle between x equals to 0 and x equals to 1 by 3. So we know that for the infinite one dimension potential one, the wave function psi x equals to √2 by L sin n pi x by L. So the probability of finding the particle is 0 up to L by 3 because of हम यहाँ पर दिया था x equals to 0 and x equals to 1 by 3, वो हमने यहाँ पर इस तरह कुछ लिख रहा है
इक्वल्स टू साई स्टार साई डी एक्स। ओके, तो हम लिख सकते हैं तो 1/L 0 अप टू L/3 ए है 2 साइन स्क्वायर n पाई x बाई L होल इंटू डी एक्स। ओके, तो 1/L कैलकुलेट दिस 1/0 अप टू L/3 1 माइनस कॉश 2n पाई x by L into dx. Okay, so then 1/L x minus sin 2n pi x by L by 2n pi x by 2n pi by L, जो लिमिट था हमने दे दिया L/3. Okay, now we have given this condition that n tends to infinite. यहाँ पर जो क्वेश्चन था n tends to infinite. Okay, तो हमने क्या करेगा ना, वो जो n है n tends to infinite, so because of this term will be 0. Okay, तो now we have 1/L x 0 up to L/3, so ये जो आंसर है 1/3 वो है ऑप्शन सी। ओके, तो अब हम सॉल्व करने वाला है इस प्रॉब्लम को। यहाँ पर दिया है ये जो क्वेश्चन है, तो 5 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनर्जी लेवल E1 एंड E2 with degeneracy level 2 and 3 respectively. So यहाँ पर दिया है find the number of the microstates with 3 particles in energy level E1 and 2 particles in E2. ओके, तो यहाँ पर दिया है जो 5 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स था, तो यहाँ पर हमने लिख लिया n इक्वल्स टू 5. सो द नंबर ऑफ द माइक्रोस्टेट्स, वी हैव टू निकालना द नंबर ऑफ द माइक्रोस्टेट्स विथ 3 पार्टिकल्स इन एनर्जी लेवल E1 एंड 2 पार्टिकल्स इन E2. ओके, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स वो हमने इस तरह कुछ डिफाइन कर लिया है, तो हमने लिख सकता है 5 फैक्टोरियल 3 factorial into 2 factorial 2 to the power 3 and 3 स्क्वायर। हाँ, हमने जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है वो है ओमेगा एन आई इक्वल्स टू पाई आई एन फैक्टोरियल बाई एन आई factorial and here gi whole to the power ni. तो यहाँ पर ये हम इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं अब तक 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 क्यूब 8 एंड 3 स्क्वायर 9, तो जो आंसर है वो है 720. ओके, तो हम लोग को वो जो ऑप्शन लिखना है किस तरह ना 0 7 2 0. Now we calculate this problem. This is a straightforward problem. An ideal gas at temperature T is composed of particles of mass m with x component of velocity vx and the average value vx. So vx is root under 3 kBT by m. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस तरह कुछ हाफ m vx स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 kBT. हाँ, यहाँ पर vx हम लोग निकाल लिया है, vx है रूट अंडर 3 kBT by m, है ऑप्शन बी। तो अब हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया है इन द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर सर्किट, वो जो सर्किट दिया है हमको, या R1 ये जो दिया था 0.5 किलो ओम, R इक्वल्स टू RC यह दिया है 2 किलो ओम, RB दिया है 200 किलो ओम एंड बीटा इक्वल्स टू IC बाई IB, ये भी हमको सप्लाई किया है इक्वल्स टू 100 ये दिया है, और VCC ये जो दिया है 10 वोल्ट
एंड वी बी ई एक्चुअली ये जो ट्रांजिस्टर है वी बी ई पर दिया है 0.7 वोल्ट, हमको निकालना है वी सी ई इन मिली वोल्ट। ओके, तो एट फर्स्ट हम लोग को क्या करना है ना, यह जो सर्किट है ये है आउटपुट सर्किट, ये सॉरी ये है इनपुट सर्किट। एक्चुअली ये जो सर्किट है इस तरह, यह है इनपुट सर्किट एंड ये है आउटपुट सर्किट। तो हम लोग को क्या करना है ना, KVL अप्लाई करना है। तो अप्लाई KVL टू द इनपुट सर्किट। अप्लाई KVL टू द इनपुट सर्किट, तो हम लोग को क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, हाँ अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट वी कैन राइट दैट VCC माइनस ओवर ICR1 माइनस ओवर IBRB माइनस VBE माइनस IERE इक्वल्स टू 0। ये हमने लिख लिया। हाँ, हम लोग को जो दिया है वो है बीटा इक्वल्स टू IC बाई IE। ओके, तो हम इस टर्म को यूज कर सकते हैं एंड रीराइट द इक्वेशन बीटा IBR1 माइनस IBRB माइनस VBE माइनस 1 प्लस बीटा IB एंड RE। हाँ, ये जो मैंने टर्म लिखा है बिकॉज ऑफ IE इक्वल्स टू IC प्लस IB, वहाँ से हम लोग ये टर्म लिख दिया है। तो हाँ, अभी हम लोग को जो वैल्यू प्रोवाइड किया है इन क्वेश्चन में वो हम पुट कर दिया एंड एट लास्ट अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन हम लोग लिख सकता है वो जो वैल्यू पुट कर दिया है हमने IB बीटा ओवर R1 प्लस RB माइनस 0.7 सॉरी माइनस 1 प्लस 100 IB इंटू RE। तो IB निकल लिया है हमने यहाँ 9.3 बाई बीटा R1 प्लस RB प्लस 101 RE। तो इसका हम लोग वैल्यू पुट कर दिया है। अकॉर्डिंग आफ्टर पुटिंग द वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू ऑब्टेन दैट IB इक्वल्स टू 0.021 मिली एम्पियर। ओके, तो हमने IB निकल लिया है। तो अब हम लोग को निकलना है यह कि ना VCE, तो ये आउटपुट सर्किट है, ठीक है। तो अप्लाई KVL टू द आउटपुट सर्किट। नाउ apply KVL to आउटपुट सर्किट। ओके, वो हम लोग क्या लिखना है अभी ना, VCC माइनस ICR1 माइनस IC माइनस IB माइनस VCE माइनस IE इंटू RE इक्वल्स टू 0। हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ बीटा अब ये लिखना है हम लोग को बिकॉज ऑफ इट रिलेट्स द IC एंड IB। ओके, माइनस ओवर ICR1 माइनस RC बीटा माइनस 1 इंटू IB माइनस VCE माइनस बीटा प्लस 1 IBRE equals to 0। ओके, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी हैव टू, हाँ हम लोग ये जानता है VCC जानता है ICR1 RC बीटा IB RE सबको वैल्यू हम लोग को पता है। तो अब हम ये लिख सकते हैं VCE इक्वल्स टू 0.55 वोल्ट यानी कि 550 मिली वोल्ट, और हम लोग को जो आंसर कुछ इस तरीके लिखना है 0550। ओके, हाँ अब हम सॉल्यूशन करने वाला है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया है L इज द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स।
So then we find the value of L cross L. So we can write L cross L in cross product I cap, j cap, k cap. So it is Lx, Ly, Lz, Lx, Ly and Lz. So कुछ इस तरह आता है, या Ly Lz माइनस Lz Ly प्लस जे कैप Lz Lx माइनस Lx Lz प्लस के कैप Lx Ly minus Ly Lx. Okay, so we can write this in terms of operators, Poisson's bracket. So I cap equals to Ly Lz plus j cap into Lz Lx plus k cap into Lx Ly. So here I cap into IH कट, इसका वैल्यू है IH कट Lx. सिमिलरली इसका वैल्यू है IH कट Ly. सिमिलरली इसका वैल्यू है IH कट Lz. सो वी कैन राइट दैट IH कट कॉमन ले लिया है, वो है Lx I कैप, Ly j कैप एंड Lz k कैप. So it is IH cut L vector. So हमारा जो सही ऑप्शन है वो है IH cut L vector, ऑप्शन बी.